Hello, Anil. Hello, Anurag. I'm Rohit Vats from News 18, and I, so and uh, this is one of the most unique concept I have seen in Hindi films with mainstream actors in it. How did this idea it seems like two friends decided to make a film and then suddenly there is a film. Anurag? this is idea is Vikramaditya Motwani. Obviously, he got it from Avinash. Avinash pitched him an idea. Vikram jumped on it. So I remember Vikram just coming to me back in 2015. He have this idea. So I said that's a good idea. He says, but this won't. This film, one of them has to be this dark director. You. So I'm like, yeah, Vikram knows me very well. So I'm saying, yeah, this is like the perception of me and not this. वैसे करेगा नहीं करेगा because to take it further I need first yes from you because दूसरा then we have to find. So मैंने कहा तेरे को जोक करना है मैं कभी मना थोड़ी ना किया है. But Vikram takes it for granted also. Then Vikram went through his journey, he found Anil because this is not, one has to be one very secure to do a film like this. Second, Right. you know you are getting into an unknown territory which can go anywhere. So in that journey, so it also because Vikram also knew my history, our history from 2003. So this was the whole idea. So मैंने कहा यार, I don't know, we have to first ask him. So he went with all of that to Anil. Like, we are going to use everything from Alvin Kalicharan to this, that, and there's nothing. कुछ नहीं छोड़ने वाले. He's immediately just jumped. He said, करूँगा. And he got everybody on board. Then it was him and Vikram. Also, Anil sir, it was like weirdly biographical. So I don't know. So we act after a point like it was so blurred between reality and what is fiction, what is planned there, what is actually happening, and also the way you have presented yourself, it seemed like it's like 24 on double asteroids. That's a Correct. real big compliment. Thank you. Thank you so much. There are times when you are like talking about your journey as an actor, and then you jumped into this project, and we don't know like who is playing who. So how would you prepare for a film like that? I was just wondering about it. Yeah, it was a journey. To be honest with you, it looks when you see the film, there are a lot of thought process went into it. I saw a lot of films, I saw a lot of work, a lot of actors, and who have played themselves internationally, and I discussed with few of my friends, and and then dhire dhire I cracked it. So what happens when I get a character? Obviously, it's a journey. एंड मेरे घर वालों को पता चल जाता कि ये अब कैरेक्टर ढूंढ रहा है तो थोड़ा सा ये पागल हो चुका है अभी घर के अंदर यू अंडरस्टैंड तो थोड़ा सा मेरा बिहेवियर रात को नींद नहीं आना एंड उठना जागना एंड फिर पिकिंग अप द फोन एंड वॉचिंग रीडिंग तो ये सारी जर्नीज हुई एंड देन मुझे ऐसा लगा कि यार आई शुड प्ले Anil Kapoor, not the real Anil Kapoor, but Anil Kapoor, the character, which somewhere is a kind of a perception also, and the kind of जो मैं उस कैरेक्टर को बताऊंगा तो लोग उसको बिलीव करेंगे. It has to be interesting, it has to be entertaining, and still very real. So that was a journey I went through, and and so and then once I got into the journey, and then me and Vikram sat a lot before the film. We could when before we could send the the draft to Anurag, because Anurag साहब ने डायलॉग लिखे हैं इस पिक्चर के. तो उससे पहले फिर मैंने अपनी पूरी लाइफ की काफ़ी चीज़ें शेयर की अपनी जो किस्से मेरे साथ रियल किस्से हुए हैं जो इस फिल्म के अंदर हैं, कुछ किस्से हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने विक्रम को बताई. एंड विक्रम लाइक अ गुड, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज. मैंने काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो वो एक स्टूडेंट की तरह, तो वो अपना बुक एंड पेन लेके और पेपर लेके वो सब लिखता है. सो एवरीथिंग वॉट एवर आई गेव ही वॉज राइटिंग इट डाउन. सो आई सेड यार चलो यार
दो पकाऊ लोग साथ में मिल रहे हैं। एक पकाऊ है अपना विक्रम मोटवाने और दूसरा पकाऊ मैं हूँ। सो दोनों पकाऊ जो हैं, दोनों जो अपने काम को बड़ा सीरियसली लेते हैं और काम को एंजॉय करते हैं, वो दोनों काम कर रहे हैं। मुझे यार इसके साथ काम करने का मज़ा आएगा। ये जितना जितना मैं पकाता हूँ लोगों को, उतना तो एक जुगलबंदी अच्छी होगी। दोनों बहुत ज्यादा रिहर्सल करते हैं, बाप रे। नहीं रिहर्सल नहीं करते, बहुत रिहर्सल, सब कुछ एकदम नहीं, इट्स नॉट रिहर्सल, इट्स लाइक रिहर्सल प्रेप नहीं, बट है, इट्स गुड फॉर द फिल्म, गुड फॉर अस। इट्स नॉट रिहर्सल। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेप बहुत ज़रूरी है, कि जब आप शूट पे जाओ तो वो मस्के की तरह होना चाहिए। दैट शुड हैपन। सो हमने जब भी एग्जीक्यूट किया, वो 10-10, 11-11 मिनट के शॉट्स जो हैं वो ऐसे हुए हैं। करेक्ट। वो इसलिए ऐसे हुए हैं क्योंकि वी वो प्रेप टू इट विद इट, क्योंकि आई फील प्रेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो प्रेप करो और उसके बाद में उसको भूल जाओ, यू फॉरगेट अबाउट इट, कि आपने क्या मेहनत की है, क्या सोचा है, उसको आप अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपके सिस्टम में, आपके डीएनए में वो चला गया, आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया। ये सारी चीज़ें ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, उसके बाद भूल जाओ, फिर आप सेट पे आओ और फिर शूटिंग आप मज़े से करो। तो वो हमने किया है। वी हैव enjoyed every bit of it. It's been tough because there were long hours. नाइट शूटिंग काफ़ी थी। 18 घंटे काम किया हमने, कभी कभी 20 घंटे भी काम किया इस फिल्म को। हम लोग हर दिन का शूटिंग था। आज हमें ये 4 शॉट्स खत्म करने हैं। हाँ। एवरी शॉट वाज लॉन्ग। ये आज 4 शॉट्स खत्म करने हैं, तो उसमें सारे एटमॉस्फेयर में, रियल क्राउड में, स्पेशली व्हेन आउटसाइड द रेलवे स्टेशन। और हमारी कहीं ना कहीं खुशनसीबी थी कि हमने ऐसी जगह, ये फिल्म हमने कंप्लीट की 28 फरवरी को। अच्छा। 28 फरवरी को ख़त्म की, और इसकी फर्स्ट मार्च को इसका रैप पार्टी था। और मैं यही सोच रहा था कि कहीं ना कहीं इस फिल्म की एक डेस्टिनी है कि हमने धरावी में शूटिंग की इसकी, लोगों में, और एक्चुअल वो दे वर नॉट बैकग्राउंड एक्टर्स बट दे वर एक्चुअल पीपल। रेलवे ट्रैक्स पे, रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन्स में, वो सारी शूटिंग हमने 20-15 दिन लॉकडाउन से पहले ख़त्म की फिल्म। अरे। एंड सो आई सेड यार 23 days, हाँ 23 days बिफोर लॉकडाउन। हाँ, तो 23 दिन लॉकडाउन से पहले ये फिल्म ख़त्म की हमने। तो मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं अगर प्रेप नहीं करता, जैसे कि फॉर एग्जांपल इवन विक्रम हैड प्रेप्ड, कि ये काफ़ी सालों से वो रेलवे स्टेशन पे गया, ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन, दूसरे रेलवे स्टेशन, क्या डिस्टेंस होगा, कितना होगा। सो एवरीथिंग वाज वेरी वेरी in his mind. He had choreographed it and he had planned it, he had prepped it as a filmmaker, and I also had to prep it as an actor before I went on the set. और set prep करके भूल जाओ, and that's the way I physically and emotionally I did this. So it had a lot of physical prep and emotional prep, and to certain extent I had to go back into my entire emotional memories of my entire career to give an exaggerated and sometimes an underplayed version of myself, and created that Anil Kapoor, the character which you see in the film. ऑल्सो जैसे अनुराग के बारे में तो हम लोग टाइम पर न्यूज़पेपर में और टीवी में हम देख ही लेते हैं कि ये थोड़ा मतलब जो बोलना रहता है वो बोलते ही है, कंट्रोल नहीं रहता है ज्यादा। लेकिन आपके बारे में अनिल कपूर द सुपरस्टार एंड वो जो दर्शक और आपके बीच का एक वॉल था, वो तो खत्म ही हो गया इसमें एकदम। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये तो साइड हमको पता ही नहीं था कि ये मतलब ऐसा भी होता है क्या। So ये साइड भी एक कैरेक्टर है, वो भी मेरा रियल साइड। जब रियल साइड होगा कोई दूसरी फिल्म में, मैं अब मुझे मौका मिला तो मैं उसे निभाने की कोशिश करूँगा, पर ये साइड भी एक कैरेक्टर है। ये मेरा रियल साइड टू सर्टेन एक्सटेंट है और नहीं भी। सर ये तो इंटरस्टेलर हो रही है, कितने लेयर्स हैं इसमें। हाँ नहीं, बट वो भी होता है ना, इन द सेंस लाइक दिस इज आल्सो अ प्ले ऑन परसेप्शन। राइट। जैसे बोले ना कि अनुराग ने डायलॉग्स लिखे हैं, तो डायलॉग्स मैंने लिखे हैं, डायलॉग्स ट्रोल्स ने लिखे हैं। सो आई एम द मीडियम। सो ट्विटर ट्रोल्स के लिखे हुए डायलॉग, जो मैसेज, जो कमेंट सेक्शन में आप डायलॉग पढ़ते हो जब आपको लोग गाली देते हैं या इनको गाली देते हैं, वो सारे डायलॉग इकट्ठे करके वाया मेरे पेन से लिखे गए हैं। तो डायलॉग्स तो ऑलरेडी थे। But you know, it's also a play on perception as more than who you really are. And obviously, facts are used as milestones in the film. You know, एक फैक्ट से दूसरे फैक्ट के बीच में 10 मिनट की जर्नी है। But वो through you have to play on that perception and हाँ, लोगों को समझता भी, मैं कुछ भी बोलूँ
ओपिनियन तो लोगों का फॉर्म्ड है ना, फॉर्म्ड है। हाँ, राइट उसको आप चेंज राइट। नहीं कर सकते। मैं कहा तुम्हारा जो ओपिनियन है वही करते हैं। तो वहां से खेलना ऑल्सो चालू होता है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स फन। जैसे कभी लिखते वक्त या एक्टिंग करते वक्त आप दोनों को ये नहीं लगा कि कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना रिवील करना भी ठीक नहीं था, या इतना लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि यही सच है? जो लगेगा लगेगा उसका। नहीं, ऐसा यू सी, कहीं ना कहीं अगर लगेगा कि सच है तो दैट मीन्स वो हमारी जीत है कहीं ना कहीं, बिकॉज वही किरदार निभाना यही होता है ना, यू मेक इट एज रियल एज पॉसिबल। और फिर उसके बाद कुछ आप दूसरा काम करते हैं, फिर वो उसे बिलीव करना जाते हैं। एक किरदार का हो जाता है ना, कितनी किरदार मैंने किए हैं जो लोग समझते हैं कि मैं वो अच्छा, हूँ। करेक्ट। कि मैंने जब ईश्वर किया, जब मैंने राम लखन किया, स्लम डॉग मिलियनेयर किया, मैंने दिल धड़कने दो, तो लोगों को लगा कि मैं हूँ ऐसा, मगर मैं वो हूँ नहीं। मैं जब रास्ते पे जाता हूँ, मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे कभी कोई अनिल कपूर बोल के नहीं बुलाता, मुझे वो कैरेक्टर के नाम से बुलाता है। ये नायक जा रहा है, ये लखन जा रहा है, ये मुन्ना जा रहा है, ये ईश्वर जा रहा है, समझे ना आप? तो मुझे कभी ऐसा नहीं बोलते अरे अनिल कपूर जा रहा है, कभी नहीं बोलते। मुझे कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं। गाड़ी में जब मैं बैठा रहता हूँ या जो क्राउड आता शूटिंग के टाइम में है, रहेगा। ए झकास, ए मजनू भाई, ए मजनू भाई, कभी मुझे नहीं ए अनिल कपूर भाई ऐसे नहीं बोलते, मजनू भाई। सो आई थिंक दैट इज, आई फील हैप्पी कि लोग मेरे किरदार को इतना रियल समझते हैं कि मेरा उस किरदार के नाम से मुझे बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शूटिंग के टाइम एक दिन हुआ था, ही वाज ऑन द रोड सर्चिंग, तो जो पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी थी, एक्चुअल पुलिस वाला था, एक्चुअल गाड़ी रोकी एंड ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिम। ओ अच्छा। तो रियल था वो तो। रियल, हाँ, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि काफी चीजें अपनी है, मतलब वो अपने आप हुई हैं। अपने आप हुई हैं। कोई भी वो टैक्सी ड्राइवर या ऑटो रिक्शा वाला जहाँ पे जाके ही सर्चिंग, वर नॉट रियल, they were not cast in the film. They were not cast in Sorry, they were not cast in the film. They're real taxi drivers and rickshaw walas. वो जो रिएक्शन मिले वो रियल रिएक्शन भी रियल मिले। अरे ये तो मतलब एक्टिंग का एकदम हाइट ही हो गया। तो अच्छा एक चीज और, जब ये कॉन्सेप्ट आया आपके पास अनिल सर, दैट कि ऐसा करना है, आपको एक सुपरस्टार प्ले करना है जो आप हैं भी और नहीं भी हैं, और फैमिली के लोग भी एक्टिंग करेंगे और सब ये करेंगे, सो वी डोंट ऑफ कोर्स डोंट वांट टू रिवील द ट्विस्ट्स ऑफ द फिल्म। तो मतलब क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि ये मतलब ये कैसा आइडिया है, क्या आइडिया है ये? नहीं, क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, मैं सुनता हूँ, बट व्हेन आई हियर समथिंग आई हियर इट both as an audience also and I hear it as an actor also. So वो दोनों ट्रैक्स मेरे चलते रहते हैं, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री का इतने सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं एज और फिल्में इतनी की हैं, फिल्में बनाई भी हैं, और तो ऑडियंस की तरह भी सोचता हूँ, प्रोड्यूसर की तरह भी सोचता हूँ, और फिर एक्टर की तरह भी सोचता हूँ, किरदार के बारे में। तो ये सारे ट्रैक्स मेरे चलते रहते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि सारे जो टिक बॉक्सेस थे वो टिक होते गए, कि ये बॉक्स है यार, ये सही है, ये बॉक्स है, ये चाहिए, सब में मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, भाई ये टिक है, टिक। मुझे लगता है ऑडियंस इज़ रेडी फॉर समथिंग लाइक दिस, मुझे लगता है ये, और ऑडियंस इज़ रेडी बिकॉज समवेयर आई फील दिस फिल्म विल, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस दुनिया में जाएंगे, मगर दिस फिल्म विल हैव लॉन्गर लेग्स, कि इस वक्त कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि हमको बहुत मज़ा आया, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद ये फिल्म 6-8 महीने 1 साल के बाद, अरे यार ये तो ज़बरदस्त फिल्म थी, यू अंडरस्टैंड टेलिंग यू। सो आई हैव ऑल दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन आई एम सेइंग येस टू अ फिल्म। सो जब मुझे विक्रम ने ये स्क्रिप्ट सुनाई, तो मुझे लगा कि ये सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, और मैंने ऐसा किरदार आज तक नहीं किया है, ऐसी फिल्म ऐसी नहीं की। और फिर जहाँ परिवार का सवाल है, मैंने विक्रम से यही कहा कि विक्रम, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। बिकॉज मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं वो सारे प्रोफेशनल्स हैं, और इनके कैमियोज़ हैं इसके अंदर, आप उनसे खुद बात करोगे, जिसने हाँ की वो करेगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। मैंने किसी से बात नहीं की। तो जितने भी इस फिल्म के अंदर हैं, चाहे वो हर्ष हो, चाहे वो सोनम हो, जितने भी किरदार हैं, वो उन्होंने खुद अपने वो उन्होंने विक्रम के लिए किया है, मेरे लिए किया है, या अनुराग के लिए किया, मुझे नहीं मालूम, और उन्होंने, दैट इज़ देयर पर्सनल डिसीजन। मैंने उनसे बात नहीं की, और मैंने पहले ही कहा था मैं किसी से बात नहीं करूँगा। मैं अपने, आई एम अ प्रोफेशनल, मैं कर रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं मालूम कौन करता नहीं करता। और जैसे अनुराग की फिल्मों में तो पहले से भी जैसे एक जो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स और ये सब का गालियों का वो रहता है, आपको पहले नहीं देते सुना कभी इतनी गालियां?
नहीं, क्या है कि टू सर्टेन एक्सटेंट एक डायलॉग था भी कि मैं यूजुअली देता नहीं हूँ, मगर ये सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ मेरी बेटी को किडनैप किया है, और जब बेटी को किडनैप किया है तो कहीं ना कहीं मुझे इट्स एन एंग्विश ऑफ अ फादर। तो वो जब बाप और के साथ ये गुजरे, पहले तो मैं बिलीव नहीं करूँगा, सही बात है ना, सही बात है, तो वो तो मुझे लगता है बहुत ही कम है। अगर दूसरा कोई होगा तो वो तो पागल हो जाएगा। वी हैव बीन वेरी 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 कॉन्शियस टू सर्टेन एक्सटेंट, मगर अगर रियलिटी में जाएंगे तो वो तो बंदूक निकाल के पहले तो वहाँ ही उसको 200-300 गाली देके उसका मर्डर कर देगा और फिल्म आगे नहीं बढ़ेगी। सही। सही ना भाई, सही बात है ना, सही बात। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं। तो जब आप फिल्म, जब लोग फिल्म देखेंगे उनको समझ आएगा कि जो भी इस फिल्म के अंदर है वो कहीं ना कहीं इट इज़ देयर नॉट बिकॉज के ज़बरदस्ती डाला है, इट इज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। सो अनुराग, जब आप एक्टिंग कर रहे थे और इतना वॉयरिस्टिक टाइप का वो एकदम प्लेजर मिल रहा है, और कि जो उसमें जब उनके मिजरी से आपको मजा आ रहा है, और कि एक डायरेक्टर को कैसे चैलेंज कर दिया, इतना हाई ब्रो एटीट्यूड का डायरेक्टर, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि ये सब अभी इतना ही प्रेप करके गए थे कि नेचुरल हुआ ज्यादातर? प्रेप तो इन्होंने सबसे करवा दी थी, मुझसे भी करवा दी थी जनरली। मुझे लगा फिल्म बंद हो जाएगी। मैं तो जनरली इस पर स्पॉन्टेनियस ही करता हूँ जो भी है, बट इन्होंने मुझसे भी प्रेप करवाया सर ने। लेकिन मैं मालूम नहीं, मैं विक्रम के साथ एक इक्वेशन है ही 20 साल से, तो मैं कंप्लेन करूँगा थोड़ा सा ऐसा, और मैं इनके ऐसा भी नहीं, ये सुपर एक्टिव है, मैं थोड़ा लेजी हूँ, तो वो भी है जोन हमारा, तो मैं घुस जाता हूँ कहीं भी जाके, एंड देन ही हैज हेल्प मी अ लॉट, लाइक से फॉर एग्जांपल एक्शन सीन। अब मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट नीदर फिजिकली इन दैट प्लेस और सो ट्रेन टू डू इट, बट ही से तू टेंशन ले, ही वुड से ऐसे करते, तो ऐसे पकड़, तू ऐसे गिर, मैं करता हूँ, मैं ऐसे घुमा दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं पकड़ा हूँ, तू जोर लगा, तू कर, तू ये कर। सो दोज आर द प्लेसेस वेयर ही हेल्प मी अ लॉट, जहाँ पे वो नहीं था। बाकी आई वॉज जस्ट प्लेइंग एन एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ माई सेल्फ, सो with Vikram in, I was in a comfortable zone, so I was very happy. It was not difficult for me. Otherwise वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। I'm a very reluctant actor, मतलब बहुत टास्क लगता है मुझे कि सेट पे जाओ, बैठे रहो, वेट करो शॉट्स के बीच में, because as a director you want to be engaged throughout. So when you shift from being a director to an actor, आपको मालूम है आपको वेट करना है जब तक वो बुलाएगा नहीं और शॉट देना है। So not being engaged, I'm not used to it. So मेरे को 24 घंटे engaged रहना चाहिए मतलब फिल्म के साथ, तो मैं इतना घुसता हूँ as a director. So as an actor it becomes very difficult for me. एक चीज और कीजिए, लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव सीन इन हिंदी फिल्म्स इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बिकॉज इससे पहले तो किसी भी ऐसे सुपरस्टार को, किसी भी बड़े एक्टर को हमने उन्हीं को प्ले करते हुए और इस तरह की सिचुएशन में तो कभी देखा नहीं। तो ये तो एक जैसे अभी पिक्चर लोगों के तक गई भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा परसेप्शन होएगा इसका? आप दोनों का इंडिविजुअल ओपिनियन। मुझे तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना, आपको क्या लगता है? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे बहुत पसंद आई। खत्म बात। मैं तो देखो शुरू करते ही कह दिया कि मुझे तो बहुत मजा आया। लगता है कि जिनको भी हमने फिल्म दिखाई है अब तक, तो सबको अच्छा, सबको बहुत बहुत पसंद आई है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या कुछ बाहर के लोगों ने भी फिल्म देखी है, सबको पसंद आई फिल्म। हाँ, it's also lot of things are also how you're making. We are not just laughing at ourselves. More than that, the film is also making fun of the world we are living in today. I'm saying a man is searching and going through, but people लोग रोक के selfie खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। I'm saying elements like that. It's a commentary on a whole lot of things without actually being a commentary. It's also about like our facade of our industry or media or everything. We are laughing at everything. We are laughing at ourselves. About the whole society also. Whole society. Yeah. That's there today. it was like weird because a celeb's life is so different that had a common person will be in such a situation where he is inside a police station and everybody is like, अरे क्या acting करी है, वाह वाह वाह।
But that's how it. मतलब it's like he's not supposed to have actual pain or or anger or real things. He's just like everything is has to be acting. नहीं नहीं, कभी कभी तो घर वालों को ये हो जाता है कि यार वो ये कैसे बीमार हो सकता है। अरे यार मैं भी बीमार हो सकता हूँ मैं भी थक जाता हूँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं उठना चाहिए सुबह, ये सब चीज़ें होती हैं। बट दैट्स व्हाट दिस प्रोफेशन इज, समटाइम्स दिस इज द प्राइज यू हैव टू पे। Right. So, Always perform. हाँ, In their minds, you have to always perform. जैसे बचपन में बोलते बेटा चलो अंकल को गाना गा के दिखाओ. या और हमने तो मतलब टीवी पर देख लिया ना कि हमने तो सिनेमा हॉल में देख लिया कि 20 गुंडों को मार गिराया, तो बीमार कैसे पड़ सकते हैं? बीमार तो पॉसिबल ही नहीं है। So on that note, I think I have used up most of my time, and it was great talking to you guys. थैंक यू सो मच। Thank you, Rohan. Fantastic film, and as you said that हो सकता है कि 2-4 साल में लोगों को, अगर अभी नहीं तो 2 साल में पता चले कि क्या पिक्चर बनाई थी। नहीं, मुझे And लगता I है hope अभी ये फिल्म ऐसी है। इसके reactions तो बहुत strong आने बहुत वाले हैं. strong तो आने हैं, हाँ, we're मुझे- going to reaction तो strong आएंगे, ये बात तो सच है। चलो ये- देखते हैं। थैंक और यू। मेरे ट्रोल्स को बहुत मसाला मिलने वाला है मुझे गाली देने के लिए तो और वो तो क्लिप्स लगा लगा के गाली देंगे। वो भी मीम्स बनेंगे. नहीं, मेरी भी उतनी ही बनेगी। Thank you. Thanks a lot, guys. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज के ज़माने में यू हैव टू बी यूज्ड टू कि ये सब आपके साथ आपके साथ होगा। ये